آئیے دیکھیں پولس رسول کا تimotheus کے نام دوسرا خط، اس کا 30 باب اور پہلی 5 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شکیباز، مغرور، بدگو، اور بدگو پر ہم فل سٹاپ لگائیں گے کیونکہ آج کا میسج جو ہے وہ بدگو پر ہے۔ ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، نہ پاک دبئی، محبت سے خالی، سخت دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ خدا کے پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ خدا کی تعریف، ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی تو آج جون کا مہینہ شروع ہوا ہے، 1 جون 2025 ہے، اور آج ہم خدا کے کلام میں سے اخیر زمانہ کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے سیکھیں گے بدگو۔ بولیں گے بدگو۔ عزیزو، انسان کی بہت ساری خوبصورت جو اچھی نعمتیں ہیں، جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہیں، جو ہمیں حشرات، پرندوں اور مچھلیوں سے زیادہ بناتی ہیں، تاکہ میں اور آپ اشرف المخلوقات ٹھہریں۔ ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں۔ ہم اپنی فیلنگز ایکسپریس کر سکتے ہیں، ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ بول کے۔ ہم اپنی نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ بول کے۔ ہم اپنے درد کا اظہار کر سکتے ہیں، میں تکلیف میں ہوں، ہم بتا سکتے ہیں۔ کیسے؟ بول کے۔ تو یہ انسانوں کے لیے آسمان کے خدا کی ایک خوبصورت نعمت ہے، تاکہ اشرف المخلوقات یعنی کہ مخلوقات میں جو بلند والا ہے اس کے پاس ایک خاص زبردست نعمت ہو۔ تو آپ اور میں اگر غور کریں تو یہ بولنے کی طاقت جو ہے اس کو ہم اکثر پازیٹیو استعمال کرتے ہیں، اچھی باتیں کہنے کے لیے، ہے نا؟ اور کبھی کبھی، بلکہ یہ کبھی کبھی کو 2 دفعہ اور کر لیں، کبھی کبھی تاکہ زیادہ ہو جائے، ہم اس سے نیگیٹو بولنے میں استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ بد کو، بد جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے برا۔ کو فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بولنا، اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے، بد اور گو یعنی کہ برا بولنا۔ ہم انسان اس خوبصورت نعمت کو جو خدا نے ہمیں دی تاکہ ہم تمام مخلوقات سے آگے نکل جائے اور ایک خوبصورت ہم خدا کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ہم ریلیشن شپ قائم کر سکیں، ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ بنا سکیں، ہم خدا کے ساتھ اپنی بات چیت کو، اپنے احساسات اور جذبات کو بیان کر سکیں۔ لیکن آج سے 2000 سال پہلے پولس رسول نے اپنے روحانی بیٹے
तिमोथियस को दूसरा खत लिखते हुए कहा, अखीर जमाने में बुरे दिन आएंगे। और मैं बार बार इसी बात पर जोर देता हूं कि वो जो अखीर जमाने में बुरे दिन आने थे वो आ जाए। ये आज के बारे में खुदा के कलाम की बातें हैं। ये आज मेरे और आपके लिए खुदा ने फरमाया रूहुल कुद्स के वसीला से कि अखीर जमाने में, एंड डेज में बुरे दिन आएंगे। और उन बुरे दिनों की निशानियां हमने अभी तक 4 देखी हैं। क्या क्या निशानी है जी? आदमी क्या हो जाएगा? सबसे पहले खुदगर्ज, दूसरा जारदोस्त, तीसरा शकीबाज, और चौथा, हाँ जी, नहीं समझ लगी? मगरूर, घमंडी। और आज और पिछले 4 मैसेजेस में हमने सीखा कि वाकई ही ऐसा है, जैसा कलाम ने कहा है वैसे ही है। ऐसा हो रहा है। खुदगर्जियां बढ़ गई हैं, मगरूरी बढ़ गई है, घमंड बढ़ गया है, सर की दोस्ती ने जड़ पकड़ ली है। दुनिया इधर की इधर हो जाए, माल आना चाहिए, जो मर्जी हो जाए माल आना चाहिए, और वो माल हमारा खुदा बन चुका है। और हम जिंदा खुदा को छोड़कर और जरियों से माल आने के चक्कर में पड़े हुए। और हमने सीखा कि ये सारी बातें अखीर ज़माना में होगी, और हम अखीर ज़माना में है, हो रही है। लेकिन हमें जो खुदा की कलीसिया है, हमें जो खुदा के लोग हैं, हमें इससे बचना है, और हमें खुद भी बाज रहना है और दूसरों को भी सिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। खुशी की बात यह है कि ये मोतबर कलाम हमारे पास है, और खुदा ने इस कलाम के वसीला से हमें पहले ही सिखा दिया कि तुमने बचना है, तुमने नहीं इसमें फंसना। ये बंद को आज सीखेंगे। लेकिन ये जो अभी आपको मैंने मीनिंग बताया, बंद और वो बुरा बोलना, इसके लुगवी मानी जो है वो आपके सामने रखता हूं। लुगत के मुताबिक इसका मतलब है बुरी बातें कहने वाला, और दूसरा गालियां बकने वाला। ये दोनों बंद को है। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो उसके इंग्लिश वर्जन में जो बदबू है, उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ब्लास्फेमर। आप अक्सर सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं, और इस लफ्ज से आपको वाकिफ होना चाहिए कि फलां ने ब्लास्फेमी कर दी है, फलां ने ब्लास्फेमी कर दी है। तो इस बदबू को अगर हम रूहानी मानों में देखें तो ये ब्लास्फेमी है, जिसका मतलब है खुदा के खिलाफ कुफर बकना। बात समझ रहे? क्या है? खुदा के खिलाफ कुफर बकना, खुदा के खिलाफ झूठ बोलना, खुदा के कलाम के खिलाफ बुरी बातें कहना। ये बंदकों को ब्लास्फेमी में हम नए मानी में सीखेंगे। सो आज अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करें, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, तो ये बुरा बोलना कितना जड़ पकड़ गया है। कई दफा हम आपस में बैठे हो, है ना, तो आपस में कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं, ये भी बड़ा अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा। लेकिन जब हम किसी महफिल में मौजूद नहीं होते तो क्या होता है? हमारे लिए क्या किया जाता है? हाँ जी, बुरा बोला जाता है। उसकी वजह हम दूसरों के लिए बुरा बोलते हैं। ये इंसानी फितरत बन गई है। आप देखें, दोस्त के खिलाफ बोल रहा, भाई के खिलाफ बोल रहा, खानदान के अंदर लड़ाइयां क्यों है, झगड़े क्यों है? बुरा बोलने की वजह से।
पकड़ गई हुई है और हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, बुराई हमारे मुंह से टपकती है और हमें बिल्कुल समझ नहीं लगती कि हम क्या कर रहे हैं। हम अखीर जमाने में बुरे दिनों की इस आफत का शिकार हो रहे हैं जिसका नाम है ब्लास्फेमी, जिसका मतलब है बद को। ये बुराई की बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं ना करते, तो गौर से बात सुनिएगा, ये बड़ी बेद की बात, जो हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, रिश्तों में एक दूसरे को माफ नहीं करते, है ना? कैसे? भाई भाई के लिए मुंह पे तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन पीछे क्या बात होती है? गलत बात है। आप देखिए, एक रिश्ते के अंदर मियां बीवी आपस में बड़े अच्छे होते हैं, है ना? होते मुंह पे बड़े अच्छे होते हैं, मियां बीवी है जो एक दूसरे लिए रबड़ ते लदा लदा पूछ के देख लो, आप पूछ कर देख ले, बंदा रोड ही लग पेगा, कहना मैं ते मरी गया, वो मेरा ते नक च दम कीता है, ते चंगे कोई है पार्टी भी नहीं है, इन्हों कोई पूछ लो, इन्होंने भी कहना ये ते नालों खराब और कोई नहीं है। क्यों? बुरा बोलना, बुरी बातें कहना आदत बन गई है। और मैं एक खास बात आपसे कहने लगा, अगर हम एक दूसरे को, हाँ ये एक चीज तो मैं भूल ही गया, ये जो सासें हैं अपनी बहुओं की कितनी तारीफ करती है, कितनी ताजे सामने कह रही है बल्ले बल्ले बल्ले, पर जो ये वो जो करती है, लेकिन बुरी बात इससे भी ज्यादा है कि माफी नुमा भी नहीं देती। ऐसे ही नुमा देना तो मुंह मार, और माफी कोई नहीं देता, और ये आपका कसूर नहीं है, ये ना भाइयों का कसूर है शोहरों का, ना ये बीवियों का कसूर है, ना ये बहनों बहनों का कसूर है, ना ये ननद भाभी का कसूर है, और ना ही ये सास और बहू का कसूर है। ये कसूर है अखीर ज़माने में बुरे दिन आएंगे और हमारा मुंह करेगा ही बुरी बात, हमारे मुंह में आएंगी बुरी बातें, लेकिन आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए बरकत को जारी करता है कि तुम इस बुरी आदत का शिकार न होना, तुम अपने किरदार को दुरुस्त रखना, तुम अपनी जुबान की हिफाजत करना, और इसमें से बदी की बातें कहने की बजाय बरकत की बातें कहना। बोले हालेलुया। तेरा मुंह बरकत की बातें करे, तेरा मुंह बरकत की बातें करे। मैं एक जगह पर बैठा होता, खादम थे, दोस्त थे, अक्सर वो गुस्से में आकर हमेशा मैंने गौर किया कि वो कहते हैं लख दी, बोलो सही, लख दी, ये अच्छा लफ्ज है? नहीं, बुरी लफ्ज है, ये गंदे लफ्ज है, खुदा को पसंद नहीं है कि ये जुबान दूसरे के लिए लानत मांगे, है ना? तो मैं एक दिन बैठे हुए थे दोस्तों में, तो गाल को मजाक की बात में मैं कहा लख दी, तो मेरे मुंह में मैं क्या बरकत, लख दी बरकत, और तुझे मैं बरकत दे रहा हूं, गुस्से में भी बरकत दे रहा हूं। ईमानदार का मुंह ऐसा हो, हालेलुया, ईमानदार का मुंह ऐसा हो कि उसके मुंह से बरकत ही जारी हो। ये उस वक्त होगा जब हम ईमान में मजबूत हो जाएंगे, ये उस वक्त होगा जब हम कलाम से वाकिफ हो जाएंगे, ये उस वक्त होगा जब खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों में काम करेगी, और ये उस वक्त होगा जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए जरा मुकाशफा में चलते हैं। मुकाशफा 22वां बाब, बाइबल मुकद्दस का आखिरी बाब है। मुकाशफा 22वां बाब और उसकी 15वीं आयत देखेंगे। लिखा है, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामखोर और खूनी और बुत परस्त, और जरा यहां पर कान खोल लीजिएगा,
और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेंगे। बुतप्रस्त भी बाहर रहेंगे, हरामकार भी बाहर रहेंगे, जादूगर भी बाहर रहेंगे, कुत्ते भी बाहर रहेंगे। और एक बंदा मेरे नाल लड़ गया, कहता जी तुसी कलाम च कुत्ते दा जिक्र किवें कर सकते हो? मैं कहा यार बाइबल च कई जगह तो लिखा है कुत्ता, तो मुझे कैसे कह सकते हो कुत्ते का जिक्र? मुकाशवा 22 की 15 देख लो, लिखा है मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, बुतप्रस्त इनमें से कुछ भी नहीं है ना? ना हम जादूगर हैं, ना हम बुतप्रस्त है, ना हम हरामकार है, ना हमारे अंदर कोई और किस तरह की बात है। हाँ, एक बात हमारे अंदर बैठी हुई है और उसके लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करना शुरू कर दीजिए, और वो है झूठी बात का घड़ने वाला, बनाने वाला, यानी कि झूठ को बनाने वाला और उसे पसंद करने वाला, दोनों आसमान की बादशाही से बाहर रहेंगे। अब ये झूठ के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है जिस्म में? क्या? ये जुबान। अपनी जुबान का इहाता कीजिए, अपनी जुबान पर अपना इख्तियार रखिए, ये स्लिप ना हो जाए, ये आपके मुंह में हिफाजत के साथ रहे और जब भी खुले बरकत के लिए खुले, जब भी खुले सच्चाई के लिए खुले, जब भी खुले माफी के लिए खुले, जब भी खुले बरकत के लिए खुले। इस जुबान को झूठ के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। झूठ बड़ा आम है ना, अक्सर ही एक ही मिसाल है मेरे पास, झूठ का बंदा टेलीफोन क्यों करना भाई, झूठ का बंदा कानून भाई किधर है? मैं तो मोड़ दिया ते है शुद्रे, है ना? ऐसे होता है, हम सारे ही ऐसे हैं। और ये झूठ तो ऐसे मलाई की तरह ही बोल करते हैं, ऐसे साथ ही सामने लोग में क्या मुंह सच बोलता है? नहीं, क्या होता है? क्यों मैडम क्या बोलते हैं? ऐवी आड़ कितने होंगे, खान रोटी जानते होंगे, कहेंगे दस बार चलो मैं खूब देर चलना, तो तेरे अपने अंदर है कोई नहीं। झूठ, छोटी छोटी चीजों में झूठ आदत बन गया है, और कलाम कहता है झूठ का खड़ने वाला और झूठ को पसंद करने वाला दोनों आसमान की बादशाही से आए। बर्द को, ये झूठ भी बर्द कोई की एक किस्म है। बचिए, बचिए और अपने आप को बचाइए। आप खुदा की निगाह में है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने म्यार के मुताबिक रखना चाहता है। उसका दिल है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां सच बोले। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या बोलते हैं? झूठ। तो ये खतरनाक बात आप तक पहुंचा दी है मैंने कि झूठ का घड़ने वाला यानी कि बोलने वाला और फिर पसंद करने वाला कौन होता है? पसंद करने वाला कौन होता है? चलिए बताएं। ये लिखा है, दो बातें लिखे, दो कैरेक्टर्स लिखे हैं। एक झूठ का घड़ने वाला वो हो गया मैं या तुसी बोलने जो ना, जो झूठ को बना रहे हैं। ये पसंद करने वाला क्या है? है जी, पसंद करने वाला कौन कौन है? इस झूठ को मानने वाला, हाँ में हाँ मिलाने वाला, हाँ हाँ करने वाला, होर दस फिर कहने वाला, पसंद करने वाला है। धर्म पसंद होगा तो फिर ये कहते ना होर है, हर चीज में तो पसंद भी पड़ती है। खाना आपको पसंद है, बिरयानी है ना, तो बिरयानी पसंद है, एक प्लेट खाली है, तो फिर दिल क्या करेगा? और फिर ही कहोगे ना
تو جب پسند نہیں تو پھر کہو گے پھر نہیں کہو گے اور. تو یہ جو مزے مزے کی باتیں لگ رہی تھی کسی اور کے نقصان کی اور کسی اور کی کمیاں بیان کوئی کر رہا ہے تو پھر بندہ کی کہتا ہے کی کہتا ہے ہور, کیونکہ مزہ آ رہا آتا ہے ہور دس اے میرے کان بڑا مزہ لے لے کے سن رہے ہور دس. او بچو جتنا گناہگار دسنا والا ہے تے اوننا ہی سننا والا ہے, اوننا ہی ہاں کہنا والا ہے, اوننا ہی ہور کہنا والا ہے. او سارے برابر ہو جائیں گے. تو اگر تیرے ساتھ کوئی کہے تو دیکھا بھائی تیری مہربانی ہے آپ بھی بچتے مینوں بھی خوش. ہمیں ہلیلویا برکت مل رہی ہے. یہ آج اگر ہم نے سیکھ لیا نا تو مزے آ جائیں گے آپ کو زندگی گزارنے کے. آگے چلتے ہیں. ابھی زبان کا ایک پورا چیپٹر ہے یعقوب رسول کا خط, اس کا 30واں باب پورا پڑھ کر دیکھیں. اس زبان کو ہی اس نے ڈسکس کیا ہے, اس زبان کے بارے میں اس نے بولا ہے, زبان کے بارے میں بتایا ہے. او کسی کنٹرول رکھو. اس کو کہا گیا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. مثال کہتے ہیں اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے, عزت اور بےزتی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ اور مثال دیا اس نے کہا بڑے بڑے جو بحری جہاز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی پتوار ہوتی ہے جس سے اسے گھما لیتے ہیں, لیفٹ رائٹ موڑ لیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح یہ زبان بھی انسان کے اندر ایک چھوٹا سا عضو ہے, ٹکتا نہیں ہے, ہوتا رہتا ہے. اور لکھا ہے جیسے جنگل میں ایک چنگاری آگ لگا دیتی ہے, یہ زبان بھی اسی کردار کی مالک ہے. چاہے تو جلدی آگ کو بجھا دے, ہوتے جھگڑے کو صلح میں بدل دے, اور چاہے تو آرام سے بیٹھی عوام کو آپس میں لڑا دے. یہ زبان, صرف یہ زبان, اسے پکڑیے, اس پر کنٹرول کیجئے, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو چاہتا ہے کہ وہ سیکھیں. پالوس کے کہنے کا مقصد تھا, پاکرو نے اسے 2000 سال پہلے اس لیے کہا کہ اس کے لوگ, اس کی کلیسیا, اس کے چرچ ہمیشہ کے لیے اس بھید کو سیکھ لیں کہ ہم نے اس کردار کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا, ہمیں نہیں آنے دینا. ہم نے اس ٹیم کا حصہ نہیں بننا جس میں جھوٹ بولنے والوں کا بول بالا ہو. سچائی اور یاد رکھیں, پھر ہم جو کچھ انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں, اب میں خاص بات کرنے لگا ہے نا, ہم آپس میں جھوٹ بول جاتے ہیں تو ہم خدا کو بھی اسی لپیٹ میں لے آتے ہیں. ہم خدا کو بھی معاف نہیں کرتے, ہم رفت میں بھی کرتے ہیں, ہم کفر بکتے ہیں, ہم خدا کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کبھی حالات خراب ہو جائے تو الزام کس میں, تو کوئی بندہ دے دے الزام کس میں, بیمار ڈانٹے ہو جاؤ ٹھیک نہیں ہو رہے الزام کس میں, ٹھیک ہو جو یار, خدا تا برا چاہتا ہے, خدا نہیں برا چاہتا. یہ ہمارے اپنے ہی کوئی کمالات ہوتے ہیں جن سے ہم ان حالات کا شکار ہوتے ہیں. آؤ اس کے کنٹرول میں چلے, آؤ اپنا دل, اپنے خیال, اپنی ہر ایک بات اپنے خدا کے کنٹرول میں دے دے, اور پھر دیکھو وہ آپ کو چاروں طرف سے کیسے گھیر دیتا ہے, آپ کو چاروں طرف سے پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ آپ کی مال, دولت, عزت سب کی حفاظت کرتا ہے. بس چھوڑو اس پر, اور پھر دیکھو کیا کمال ہوتا ہے. ہمیں بچنا ہے. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو خدا کے خلاف ہوئے, کیا بنا لیا, بچڑا. اور ان سے کہنے لگے وہ پر گیا, پتہ نیچے آتا کہ نہیں آتا, وہ سانو ساڈا خدا بنا کے دے, سونے کا بچڑا بنا دیا. 40 سال بیابان میں گھومتے رہے. پھر اس کے بعد جب اس پرومس لینڈ میں چلے گئے تو اس پرومس لینڈ میں جا کر بھی ان کو صبر نہیں آیا. کیا کرتے ہیں,
عرصے کے لیے خدا کے ساتھ وفادار ہو جاتے ہیں. اور پھر جب خدا انہیں غیر قوموں سے بچا لیتا ہے, دوسرے بادشاہوں سے بچا لیتا ہے, کچھ دیر وفادار رہنے کے بعد تو بعد نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں, خدا کے خلاف بولنے, دوسرے دیوتاؤں اور دوسرے خداؤں کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرتا. میں آگے چل کر بتاتا ہوں کہ کلام ہمیں بڑا واضح پیغام دیتا ہے. اور ذرا دیکھیں پرانے اہد میں خدا نے کیا رکھا. احبار, پرانے اہد میں چلیں گے, احبار 24واں باب اس کی 16ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے, اور وہ جو خدا کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے. ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے, خواہ وہ دیسی یا پردیسی. جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. ہاں جی, خدا کے نام پر کفر بکنے کی سزا کیا تھی؟ سنسار. سنسار کیا ہوتا؟ زندہ انسان کو پتھر مار مار کر مار دینا, اور تب تک پتھر مارتے رہنا جب تک وہ مر نہیں جاتا. اور یہ سزا کس کی لکھی ہے؟ جو خدا کے نام پر کفر بکے گا, جو خدا کے بارے میں جھوٹی باتیں کہے گا. اور بنی اسرائیل یہ بار بار کرتی تھی. بنی اسرائیل کی عادت میں شمار تھا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد زندہ خدا کو چھوڑ کر اور معبودوں کے پیچھے جاتی اور زندہ خدا کے بارے میں کفر بکتی تھی اور پھر سزا پاتی تھی. بچیے, ہمارا منہ بھی اکثر خدا کے خلاف کھلتا ہے. ہمیں خدا کی نعمتیں نظر نہیں آتی, خدا کی برکتیں نظر نہیں آتی. اور میں نے ابھی لاسٹ سنڈے سکھایا کہ یہ سانس ہے تو سب کچھ ہے. سانس گیا تھے کہانی مک گئی. یہ سانس ہے تو سردی گرمی ہے نا, سانس ہے تو خوشیاں اور میرے ساتھ بلند آواز سے بولے, خوشیاں اور غم ہے. یہ سانس ہے تو بیماری اور تندرستی ہے, اور سا ہے نہیں تو کپڑے ہے نہیں, سونے بننا ہے نہیں, آنا جانا ہے, شادی بیاہ ہے, اور جو کچھ ہے ان سانسوں پر ہے. کاش ہم ان سانسوں کے لیے خدا کے سامنے بھرپور شکر گزاری کریں. صرف ہمیں ہر وقت یہ یاد رہے نا کہ ساتھ چلنے دے تمہارا منہ کبھی خدا کے خلاف نہ بولے, کفر نہ بولے. خدا کے خلاف بولنا بڑا خطرناک ہے. کلام کہتا ہے خدا کے خلاف بولنے والا سنسار کر دیا جائے. تو آج کیا, آج تو سنسار نہیں کرتے, آج تو سنسار نہیں کیا جاتا, پتھر نہیں مارے جاتے. پھر آج خدا اور طرح سے ہمیں مبتلا کر دیتا ہے اور دنیاوی مشکلات کا شکار کر دیتا ہے اور ٹینشنوں میں ڈال دیتا ہے, اور جو ہمارے لیے ہے نہیں ہم اسے جان بوجھ کر اپنے اوپر طاری کر دیتے ہیں. خدا کہتا ہے شاباش, کھا بیٹا, کیونکہ میں تو تجھے برکت دینا چاہتا ہوں. تو اپنے لیے اگر برکت نہیں چاہتا تو چل موج کر, آؤ کنٹرول کریں. اور پھر ابراہیم کے نام خط میں آئیے ذرا جلدی سے. خدا ان کی تعریف ہو, وہ ہمیں سکھا رہا ہے. شاباش, میرے سے پہلے نکال لے تو بلند آواز سے پڑھے عبرانیوں 6 باب اس کی 4 آیت سے.
शाबाश। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चखेंगे। जिनके दिल एक दफा रोशन हो गए वो आसमानी बख्शिश का मजा चखे और रूहुल कुदस में शरीक हो गए। और रूहुल कुदस, हाँ जी, जिन्होंने आसमानी चीजों का मजा चखा किसमें शरीक हो गए? रूहुल कुदस में। जी फिर और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। हाँ जी, खुदा के कलाम को चख लिया, टेस्ट कर लिया, मजा आ गया और फिर हमें यकीन हो गया आइंदा जमाने की बरकतें भी लेंगे। और अगर वो बरगश्ता हो जाए, हाँ, वो बैकस्लाइड चले जाएं, वो जिन्होंने चख लिया है वो बैकस्लाइड चले जाएं, तो क्या होगा? तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन। हाँ जी, फिर उन्हें नया बनाना बड़ा मुश्किल है। उन्हें नया नहीं बनाया जा सकता क्योंकि टेस्ट तो उन्होंने ले लिया, यकीन भी उन्हें आ गया और फिर बैकस्लाइड जा रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर अपने आप को दुनियादारी में डाल रहे हैं, फिर नया बनाना बड़ा मुश्किल है। आगे चलेंगे। इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके लानिया जलील करते हैं। हाँ जी, वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा जलील करते हैं, सलीब पर टांगते हैं, दोबारा कुर्बान करते हैं, क्योंकि एक दफा जब सब कुछ उनके साथ अच्छा हो गया फिर वापसी, फिर बातें, फिर जादूगरियां, फिर बुराइयां, फिर तरह तरह के टूटे टोट के, तो क्या होता है? हम खुदा को जलील कर रहे होते। मैं तो अक्सर लीडर्स को ये कहता हूं, लीडर्स भी खुदा के खातमों को, जब मैं सेमिनार्स में पढ़ाने के लिए जाता हूं, बाइबल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए जाता हूं, मैं ये कहता हूं उनको कि अगर तेरा खुदा तेरे बिल नहीं ना मार सकता, अगर तेरा खुदा तेरे रोज के रिजल्ट को मुहैया नहीं कर सकता, फिर छड़ ऐसे खुदा, फिर खिदमत ना करो दी, क्योंकि तेरा ए अमल तेरे नाल नाल खुदा को जलील करने पे है। किस कमजोर खुदा को मानते हो भाई कि तेरे बिल नहीं पूरे हो रहे और तेरे घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा और तू खुदा के नाम को धब्बा लगा रहा है? छोड़ दे, जाके गडेरिया की रेडी ला रहा है, उतो लग जाएंगे तेरे पैसे। लेकिन अगर खुदा की खिदमत करनी है तो फिर खादम बन जा। याद रख कि वो जो पूरी कायनात को चलाता है, वो जो समंदर के अंदर मछलियों को खाना मुहैया करता है, वो जो जंगलों के अंदर जानवरों को खाना मुहैया करता है, क्या वो तेरे ही और तेरे खाने की जरूरत नहीं पूरी कर सकता है? क्योंकि वो दुनिया चलाता है, वो तेरे लिए तो वो ज्यादा करेगा। तू कहना मेरा बिल नहीं पूरा होता, इसका मतलब है तू खुदा को जानता नहीं और तू खुदा की खिदमत दुरुस्त तौर पर नहीं कर रहा। कमाओ, निकलो इन बातों में से, क्योंकि पैसा कमाने के लिए खिदमत करना बेवकूफी है। पैसा कमाने के और बड़े तरीके, पैसा कमाने के और बड़े तरीके वो कर लो। खिदमत सिर्फ एक ही मकसद के लिए, गौर से सुनिएगा, खिदमत सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, रूहों को बचाना और उन्हें यीशु के पास लाना, और खिदमत का दूसरा कोई मकसद नहीं। रूहें बचाना और उन्हें यीशु के पास ले आना, नजात उनकी जिंदगियों में इंसाइट कर देना, कहना यीशु तेरे लिए हुआ है। तो याद रख, ये जुबान का ही कमाल होगा कि तेरे अंदर का जो ये उस्म है ना, ये बोलेगा तो यीशु के नाम को जलाल मिलेगा। आमीन, हालेलुया। सो बैकस्लाइड नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है। मैं अक्सर ईमानदार के लिए ये कहता हूं, हम ईमानदार हैं, गिर जाते हैं, कमियां आ जाती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर आपको महसूस हो जाए, झुके, माफी मांगे, कपड़े झाड़े और आगे की तरफ चले, पीछे ही ना देखते रहे, मर गए, लुटे गए, हाय किया, वो आपका खुदा आपको
माफ करने के लिए हर वक्त तैयार है। हालेलुया। उसके पास माफी है। आप और मैं आगे बढ़े और खुदा की बरकत को हासिल करें। आइए जरा, बहुत सारे मसीही रूल कुछ के बारे में बोलते हैं। जरा देखिएगा, मत्ती की जीव में आई मत्ती 12वां बाब उसकी 31वीं और 32वीं आयत देखेंगे। शाबाश। मत्ती 12वां बाब, शाबाश। लिखा है 12वें बाब की 31वीं आयत के अंदर, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि आदमियों का, गौर से बात सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर है। आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो माफ किया जाएगा। कब? अगर वो माफी मांगेंगे, अगर वो सच्चे दिल के साथ तौबा करेंगे, अगर वो खुदावंद के साथ वफादार हो जाएंगे, तो हर तरह का गुनाह और हर तरह का कुफ्र तो माफ किया जाएगा। और जो कोई ऊपर लगे वापस, आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। हाँ जी, रूह के खिलाफ किया गया कुफ्र, बोली गई झूठी बात, झूठी तालीम, तो कामयाबी नहीं होने लगी, माफी नहीं मिलने लगी। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ कोई बात कहे, वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रुल्कुस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा, वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले। हाँ जी, रुल्कुस के खिलाफ की गई बात ना यहां माफी है ना वहां माफी है। सो कंट्रोल कुफर बकने से। और ये कब होगा? जब हम आपस में झूठ बोलना बंद करेंगे, जब हम एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करेंगे, तो हम खुदा के खिलाफ को भी इज्जत देंगे, खुदा को भी इज्जत देंगे, और उसके खिलाफ किसी तौर पर भी झूठी बात नहीं बोलेंगे। हाँ, आओ अपने आप को मजबूत करें, ईमान में अपने आप को मजबूत करें, बरकत में। आखिरी चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगा। पौलुस रसूल की जिंदगी यीशु में आने से पहले कैसी थी? खतरनाक बंदा था। आइए जरा देखें, आइए पहले ग्रंथियों में चलते हैं। ग्रंथियों के नाम था उसका 12वां बाब उसकी 30वीं आयत, 12वें बाब की 30वीं आयत के अंदर लिखा है, बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु खुदा है, और ना कोई रुल्कुस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। रुल्कुस के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। इसका मतलब है, जब रूह हमारे अंदर आ जाएगा, जब खुदा का रूह रुल्कुस हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाएगा, तो ये जुबान खुदावंद यीशु को निजात दहिंदा मानेगी, उसे अपना खुदावंद कहेगी। ये जुबान रूह के ताबे हो जाएगी। हम खुदावंद के रूह के ताबे हो जाएंगे, क्योंकि रूह उसके बगैर हम कह ही नहीं सकते कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। सो इस कुफर को ताकत में ना बोला करें, कमजोरी में भी ना बोला करें, क्योंकि ये आपके लिए फंदा बन जाएगा, फंदा बन जाएगा। अगर हम यहूदा के खत में चले, यहूदा का खत एक ही बाब है उसका, उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मिकाएल मुकर्रम फरिश्ता जो है वो क्या करता है। शाबाश, आपको पढ़ी दूं कुछ 9वीं आयत में, लेकिन मुकर्रम फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस और तकरार करते वक्त
लान ताक के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, मिकाइल फरिश्ता पता कितना पावरफुल है? फरिश्ता तो सादा ही बड़ा पावरफुल होता है। हाँ? मिकाइल जबरदस्त सरदार फरिश्ता, शैतान के साथ तकरार चल रही है मूसा की लाश पर। मिकाइल कहता है ये खुदा का बंदा है। हाँ? शैतान कहता नहीं ये मेरा बंदा है और इन्हें कत्ल भी किया है, इसके मुंह से कुछ ना कुछ गलत भी निकला हुआ है। दोनों आपस में तकरार कर रहे हैं। चाहता मिकाइल तो नालिश करता, दावा करता और इब्लीस पर बुरी बातों की बुझाड़ कर देता, है ना? पर उसने नहीं किया। कर सकता था, नहीं किया। ताकत थी, नहीं किया। मैं और आप तो कुछ भी नहीं है, हम तो बुरा बोलने मीटर नहीं लगाते। हाँ जी, अभी क्या ख्याल है? उस साडा ते अजी कुछ भी नहीं होते ते साडे को बहाना पता की होता? लो जी हुण माड़ा बंदा गाला भी ना कड्डे। हाँ जी, क्यों भाई तबीर? वो बंदा माड़ा बंदा गाला भी ना कड्डे। वो भाई माड़ा बंदा गाला कट के अपना मुंह गंदा करे, झूठ बोले, कुफर बोले। क्योंकि जब हम एक दफा स्टार्ट हो जाते हैं फिर हम माफी कोई नहीं देनी होती किसी को, पीटा ला देने सारा। तो इब्लीस यही तो चाहता है। मिकाइल फरिश्ते ने कहा ना भाईया ना, तेनू खुदा ही पूछे ते तेरा हिसाब खुदा ही करे, जब मैं तेन कुछ नहीं कहता। काश ईमानदार भी इतना बड़ा दिल करके अपने मुखालिफ के लिए कहे जा खुदा तुझे पूछे, मैं तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलता, मेरी जुबान तेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलती, खुदा ही तेरे पूछे। तो याद रखे आपका रोब उस बंदे के ऊपर खुदा के रूह के वसीला से ठहर जाएगा। कहते यार एडा गुस्से च भी आके इन्हें खुदा अब बोलो तो सही, खुदा का दामन ने नहीं छड़िया, इसकी जुबान ने मेरे ऊपर लानत नहीं की, इसने मुझे कहा जा खुदा तेरे पूछे। काश एडा बड़ा दिल हो जाए, क्यों भी काके पुत्रों, काश एडा बड़ा दिल हो जाए, काश इतना बड़ा दिल करके के जा खुदा तेरे पूछे। तो जिस तो भी थोड़ा जिहा बड़ा हो जाए मेरे नाल ते भैड़ा ते जा खुदा तेरे चंगा करे। क्यों भी कैसा है, कैसा है? आप लड़ाई में भी खुदा के लोग लगेंगे, आप बुराई में भी खुदा के लोग लगेंगे। जा खुदा तेरे बरकत दे। तो जे तुहानू कोई कहे जा तेरे ते लख दी, तो तुसी अगों की कहना, रिवर्स की मारना, जा तेरे ते खुदा लख दी बरकत भेजे। हाँ, आप सारे माहौल को बदल देंगे, आप लड़ाई के सारे माहौल को चेंज कर देंगे, इब्लीस के सारे मंसूबे को खत्म कर देंगे और आप बरकत देने वाले बन जाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। आओ बरकत देने वाले बने। ताकत थी मिकाइल फरिश्ते के बाद, पर लानत नहीं की। चलो हमें समझना है, हमें बचना है और हमें बरकत देने वाला बनना। आखिरी वाला है पहला कुरिन्थियों 4 बाब, उसके बाद क्या है जल्दी से देखेंगे, उसके बाद मैं इस ब्लॉग को बंद कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत के अंदर, और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं लोग। ईमानदारों जरा गौर से सुनिएगा, कैसी जबरदस्त ईमानदारों की हालत लिखी हुई है। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। मेरे साथ जरा पढ़ेंगे लगभग से। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े
और सब चीजों की झड़प की मानद रहे। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर को नसीहत करता हूं, क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से उस्ताद ज्यादा हो सकते हैं, बाप नहीं है। मैं सालों पुराना जुमला बोलने लगो, सालों पुराना जुमला, और ये मैंने किसी वक्त सीखा था। पौलुस भी ये कह रहा है, उस्ताद बहुत सारे हो सकते हैं, मैं भी कहता हूं हो सकते हैं। तो मैं तेरा ने और ऐड करना, मामा जिन्नियां मर्जी बना लो, उस्ताद जितने मर्जी बना लो, पर अब्बा एक ही रखे, बाप एक ही होना चाहिए। जिसको एक दफा बाप कह दिया सो वही है बाप। उस्ताद जितने मर्जी हो आप भी सीखे सबसे, लेकिन बाप एक ही होना चाहिए। यही पौलुस रसूल यही बात हमें सिखा रहा है, क्योंकि अब मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप और से नहीं। इसलिए मैं इंजील के वसीला से मसीह में तुम्हारा बाप बना। मैं मसीह के वसीला से तुम्हारा बाप बना, और मैं बाप होने की हैसियत उस वक्त पौलुस अपने रूहानी बेटे तीमुथियुस को कह रहा है, और मैं आज सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च की कलीसिया को स्पिरिचुअल फादर होते हुए ये कह रहा हूं, बदगोई बंद कर दीजिए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बदगोई बंद कीजिए। और आखिर जमाना में हमने सीख लिया, ये घर घर होगा, ये रिश्ते रिश्ते होगा, लेकिन जो ईमानदार यीशु मसीह में आ जाएंगे, वो ईमानदार जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे, वो ईमानदार जो यीशु मसीह के कलाम को सच्चाई के साथ कबूल कर लेंगे, वो इन बुरे किरदारों से बचेंगे, और ना सिर्फ बचेंगे बल्कि दूसरों को भी बचाने का बाइस बनेंगे। सो आओ हम बचाने वाले और बचने वाले बने, और मसीह में आगे बढ़ने वाले बने, क्योंकि मसीह चाहता है हमारी जुबान बाबरकत बातें करे और हमारा मुंह पुरफजल कलाम बोले। आओ अपनी जगहों पर खड़े हो और चंद के लिए हम खुदा के हुजूर दुआ में चलेंगे।